Hello everyone, this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today I'm gonna be doing readings about how your January month 2021 will be. But this is not a pick a card reading. So this time I have thought of doing readings your zodiac sign wise. So I'll be reading sign wise readings. So this reading is for Gemini. So how the January month of 2021 of Gemini people will be. Actually, I don't believe in yearly readings, so I'll be doing per month reading of each zodiac. So this is reading for Gemini's 2021. So I'll be using two decks here. One is Rider-Waite deck and the other is Angel Oracle deck. And I'll be doing runestone reading as well. So let's start. I'll be shuffling the cards and taking out the cards in front of you all. So the three cards I'll be taking from the Rider-Waite and one I'll be taking as general guidance, angel's guidance from this deck. So three cards I'll be taking from Rider-Waite. For Gemini, how the January month of Gemini people will be. So your first card is Chariot. Okay, very good card. Star, very nice. बहुत बहुत अच्छा रहेगा Gemini. Page of Swords and the angel guidance for you will be, wait, let me take out angel guidance. So what the angels are saying, change in direction. Okay, I hope it's visible. Change in direction. And I'll be taking runestones as well. So alright, you got this runestone and this one. So for Gemini people 2021, as I'm seeing, you have got the Chariot. And Chariot means you will succeed in these are the first 10 days of January month. These are the next 10 days and these are the last 11 days of January month. And this is the angel guidance which I'll be giving you for January month 2021. This is for Gemini zodiac. So Gemini's, it's about reaching the victory and success through the hard work and determination. Like, you may have worked hard in 2020 and you will be reaping the results. You will be reaping, you will getting the success in 2021. This card also means travel. You may also travel because Chariot means traveling. So traveling is in your cards in 2021 January first week. Geminis will travel is what I feel. And angels blessings are with you. You are a very responsible person. You take responsibility और जो आपको responsibility दी जाती है आप उसको बहुत अच्छे से पूरा करते हैं. आप लोग कुछ जेमिनाई जो हैं अच्छाई में भी बुराई और बुराई में भी अच्छाई कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं. कोई ना कोई चीज़ जो बिल्कुल फेल होने के कगार पे है, जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, उसको फिर से रीस्टार्ट करना, उसमें कुछ अच्छा ढूंढना, उसमें कुछ पॉजिटिविटी ढूंढना और फिर आगे बढ़ना, ऐसा जेमिनाइज फर्स्ट वीक में करने वाले हैं. और मैं ये भी बोलूँगी कि जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है करियर वाइज या जॉब वाइज, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको शिव जी की तरफ से या भगवान की तरफ से, जिस भी डाइटी को आप मानते हैं, जिस भी मोडालिटी को आप लोग करते हैं, उनकी तरफ से वो आपको आएगी. बिवेयर रहना है. और क्योंकि गॉड आपके साथ है, आपका शायद कोई भी काम पहले भी नहीं रुका और आपका कोई भी काम आगे भी नहीं रुकेगा. और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज कहीं ना कहीं थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे फर्स्ट 10 डेज में तो फिर वो इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे. एंड ट्रैवलिंग इज इन योर कार्ड्स. और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है. अगर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, हाउ टू मेक दैट वर्क, वो दिख रहा है. कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे घर बनता हुआ दिख रहा है.
कुछ घर लेने की सोच रहे हैं या बहुत टाइम से कुछ प्लानिंग चल रही है, वो भी वो फर्स्ट 10 डेज में उनकी होने वाली है। अपने थोड़ा इमोशनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे कि जेमिनाइज आर वेरी इमोशनल, तो थोड़ा इमोशनल नहीं होना है। अदरवाइज आपके जो फर्स्ट 10 डेज हैं हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रहेंगे, देयर विल बी नो हेल्थ इशू, और अगर कोई हेल्थ इशू हो भी रहा होगा, पहले से कोई हेल्थ इशू होगा, तो दैट विल बी रिजॉल्व्ड। एंड थोड़ा सा यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज समटाइम्स यू मे गेट लेजी, थोड़ा सा लेजीनेस लग रही है मुझे, सो थोड़ा सा बोलते हैं जैसे गेट रेडी, जैसे कि बिल्कुल रेडी है चैरियट टू मूव ऑन, सो ऐसे हमेशा रेडी रहिए, तो कहीं जाके आपको हर जगह सक्सेसफुल होगी। तो फर्स्ट 10 डेज, और दिस इज मेजर अरकाना, मतलब तो ये चीज़ें दीज आर बाउंड टू हैपन, ये होंगी, ये डेस्टिन्ड है। सो बहुत अच्छा है फर्स्ट 10 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट 10 डेज पे। सो यू हैव गॉट द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड भी एक मेजर अरकाना है। सो बहुत मेजर चीज़ें फर्स्ट 20 डेज में जेमिनाइज के साथ मुझे दिख रही है कि जो होने वाली हैं। दिस इज अ कार्ड फॉर होप, दिस इज कार्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज, दिस इज कार्ड ऑफ मिरेकल्स, दिस इज कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी है, जैसे कि ये देखो ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी को अपनी वेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार का अपने आप में ही मतलब है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज में, यानी कि आफ्टर 10th of January जेमिनाइज आपका डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ, या तो जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको फेम मिलेगा। स्टार जो है ये फेम को दर्शाता है, आपके कहीं ना कहीं आप फेमस जैसे होने के चांसेस हैं। सो जो मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का तो उसको कीजिए, बिकॉज आपको ये जो कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आपको ये गाइडेंस ये मिल रही है कि मूव अहेड, डू नॉट रिग्रेट अबाउट पास्ट, या डू नॉट रिग्रेट कि लोगों ने जो भी बोला है, कुछ मतलब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टार कार्ड आया है, मीन्स करियर वाइज भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाएंगे इन 10 डेज में तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज दिस कार्ड इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। और ये मतलब गुड टाइम है मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई कोई आप सोशल मीडिया पे कुछ नया करना चाहते हैं, सो दिस इज द गुड टाइम। और अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपने रिलेशनशिप में कुछ भी हाइड मत करें, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, कुछ भी छुप के, जैसे होता है ना कि छुप के करना या ऐसे करना, सो इस तरह से कोई चीज़ मत करें, बी ओपन, और सब कुछ सामने रख के करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर इफ़ यू आर सिंगल तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मीट समवन। अगर कोई आपकी लाइफ में इस वक्त पे आ रहा है जेमिनाइज की लाइफ में, सो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दें, और डू कंसिडर दैट पर्सन वेरी सीरियसली। और हेल्थ वाइज भी ये कार्ड गुड है, अगर कोई इश्यूज होंगे तो दैट विल बी रिजॉल्व, एंड यू शुड डू। यहाँ भी ये कार्ड यही बोल रहे थे कि एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर रहे थे, यहाँ भी ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज, योगा, एंड डू नॉट बी लेजी एट ऑल। स्पिरिचुअल लाइफ का भी कहीं ना कहीं ये कार्ड है कि कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जाएंगे या उनका ध्यान होगा। सो उस फील्ड में भी अगर वो जाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। सो और ये जो 7 स्टार्स हैं, आप देखिए कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्टार्स हैं ये आपके 7 चक्रास को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी आपके जो चक्रास हैं और ये जो एक स्टार है ये उन सबको मतलब जैसे होता है ना कोई चक्र हमारा इम्बैलेंस होता ही है। सो बहुत अच्छा टाइम है, सब कुछ आपका बैलेंस्ड फॉर्म में इन 10 डेज में होगा। सो नेक्स्ट आते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये बोलता है कि डू नॉट बी हार्श व्हेन यू टेक डिसीजंस। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में या हार्शली या इमोशनल होके कोई भी डिसीजंस नहीं लेते हैं या नहीं लेने हैं आप लोगों ने। और कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है कि कोई एक पर्सनालिटी, यंग एज की पर्सनालिटी जो है आपकी हेल्प के लिए, या जैसे आप वर्क प्लेस पे हैं तो कोई एक आपका सा फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, या अगर आप फैमिली में हैं तो कोई आपका अगर आपके बच्चे हैं तो इस एज के वो हेल्प करेंगे, नहीं तो कोई और है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए लास्ट 10 डेज में अवेलेबल रहेगा। सो उस चीज़ को भी आपने इग्नोर नहीं करना है। और बहुत हार्शली, जैसे कि मैंने आपको बोला है, बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत टर्बुलेंस जैसे लाइफ में होते हैं वो नहीं होने हैं। सो थोड़ा जैसे होता है ना कि हमें कई बार एक
क्लाउड्स नज़र आते हैं कि कुछ नहीं नज़र आ रहा है, सो उन क्लाउड्स को चीर के उनको कट करके आगे को निकलना है, ठीक है। सो ये बोलता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका ओवरऑल आपका मंथ बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है जेमिनाइज। सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। चेंज इन डायरेक्शन, द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग आर डिवाइनली डायरेक्टली बाय योर न्यू बॉर्न विलिंगनेस टू ओपन योर हार्ट टू लव एंड अ गाइडेंस। You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया है, जेमिनाइज ने कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट करते हैं एंजल्स की गाइडेंस के ऊपर। सो इस वजह से वो हमेशा प्रोटेक्टेड हैं और अभी भी प्रोटेक्टेड हैं, फ्यूचर में भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड प्रेगनेंसी का भी लग रहा है। जेमिनाइज का बहुत अच्छा टाइम है प्रेगनेंसी का, या फिर डिलीवरी का, या फिर बर्थ का, या मे बी एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, और सम ब्लेसिंग इज विद यू। एंड इवन इफ कुछ चीज़ें आपको अभी लगेगा कि कुछ सेंस नहीं बन रही इन चीज़ों की, कि मतलब कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लग रहा है कि सेंसलेस हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। एवरी थिंग हैज़ अ सेंस एंड एवरी थिंग इज हैपनिंग बिकॉज इट इज़ बाउंड टू हैपन एंड इट इज़ फॉर योर गुड ओनली। सो जेमिनाइज, ऑल द बेस्ट। सो अब जो आपके रून स्टोन्स आए हैं, फर्स्ट आपका जो रून स्टोन है वो ये बोलता है कि आपको सक्सेस का, ये भी फर्टिलिटी का है। सो अगेन कंसीविंग का है, बर्थ का है, अडॉप्शन का है। सो और एकम्प्लिशमेंट का साइन है, ये सक्सेस का साइन है। जैसे कि जैसे होता है ना कि इफ़ यू आर बोइंग अ सीड, अगर आप सीड को बीजते हैं और उसके बाद उसको वाटरिंग करते हैं, उसको अच्छे से नर्चर करते हैं, तो वो अच्छे से प्लांट में ग्रो होता है। तो शायद ये उस तरह से कुछ बता रहा है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप ढंग से उसके ऊपर वर्क करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। सो दिस वॉज दिस साइन। नाउ विल कम टू दिस साइन। ये जो साइन है ये अगेन ट्रैवल का। सी हाउ रून स्टोन्स एंड कार्ड्स दे आर सिमिलर। ये जो कार्ड है ये आपका एग्जैक्टली एंजल गाइडेंस के जैसा है, और जो कि आपको फर्टिलिटी का बता रहा है और सक्सेस का बता रहा है, और स्टार भी जैसे आपको सक्सेस का बता रहा था। और ये वाला जो रून स्टोन है ये भी आपको ट्रैवल का बता रहा है, जैसे कि द चैरियट आपको ट्रैवल का बता रहा था, आपको ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड it may be related to some ceremony, some marriage or some celebration, some birthday celebration, some kind of celebrations are on your card. So ये वो बता रहा है, मूवमेंट को बता रहा है, और लॉयल्टी को, पार्टनरशिप को। अगर कुछ जेमिनीज जो हैं इस वक्त वो दे आर प्लानिंग टू डू अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, सो ये बहुत अच्छा टाइम है। ये बता रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम कर लेना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर अफ्रेड व्हेन वी डू सम काइंड ऑफ जॉब और सम काइंड ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, सो इट इज़ वेरी रिस्की। बट अभी के लिए जो आपका आ रहा है इट इज़ नॉट एट ऑल रिस्की। सो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं एंजल्स को, और पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। ट्रस्ट का भी है ये जो रून स्टोन है, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को भी बताता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं गॉड्स को, एंजल्स को। So all right guys, this was all for Gemini people. I hope this all will resonate with you. Please take the things which will resonate and please leave the things which will not resonate. So okay guys, bye bye, see you next month.